تلنگانہ میں بلدی انتخابات کی تشہیر کے آخری دن تمام جماعتوں کی جانب سے تشہیر میں شدت پیدا کی گئی۔ مختلف طریقوں سے انتخابی تشہیر کرتے ہوئے آخری دن رائے دہندوں کو راغب کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی کے حصے کے طور پر محبوب نگر ضلع کے مقامی جونیئر کالج میدان میں وزیر سرینواس گوڑ نے چہل قدمی کی۔ وزیر موصوف نے یہاں یقین دہانی کروائی کہ مختلف میدانوں میں واکنگ ٹریک اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ TRS کو موقع دیے جانے پر اس ٹاؤن کو محبوب نگر ضلع کی طرز پر ترقی بھی دی جائے گی۔ وہیں انتخابی مہم کے آخری روز مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی نے نلگنڈا میں انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تلنگانہ میں آنے والے اسمبلی انتخابات میں عوام BJP کو اقتدار سونپے گی۔ انہوں نے TRS، کانگریس اور MIM کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ وہیں تلنگانہ میں بلدی انتخابات کی تشہیر کے آخری دن تمام جماعتوں کی جانب سے تشہیر میں پوری طاقت جھونکی گئی۔ مختلف طریقوں سے انتخابی تشہیر کرتے ہوئے آخری دن رائے دہندوں کو راغب کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی کے حصے کے طور پر محبوب نگر ضلع کے مقامی جونیئر کالج میدان میں وزیر سرینواس گوڑ نے چہل قدمی کی۔ MIM صدر اسدالدین اویسی نے مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 6 برسوں کے دوران ملک میں بے روزگاری میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ مودی حکومت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ہندو مسلم کارڈ کھیل رہی ہے، سماج میں نفرت اور زہر پھیلا رہی ہے۔ اویسی نے ملک کے آئین اور جمہوریت کو بچانے کے لیے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی عوام سے اپیل کی ہے۔ وہیں حیدرآباد کے اندرا پارک دھرنا چوک پر ینگ انڈیا ڈکلریشن میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ اس میٹنگ میں ممتاز فلم اداکار اور انسانی حقوق کے جوہدکار پرکاش راج نے شرکت کی۔ انہوں نے حکومت کی جانب سے لائے گئے قانون کو آئین کے خلاف قرار دیا۔ آئین کے ایک لفظ کو بھی تبدیل نہ کرنے کا یہاں انہوں نے عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے پرامن احتجاج جاری رکھنے کی اپیل کی، آخری دم تک ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ اس اجلاس میں طلبہ اور نوجوانوں، خواتین اور لڑکیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ہمارے حق کی لڑائی ہے، یہ دیش کسی کے باپ کا نہیں ہے نا؟ ہمارا حق کی لڑائی، چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہمارا پردھان منتری جی ہے، جو پھوڑ ان پڑھ ہے، ان کی جھوٹ کی اس چین میں اور ایک جھوٹ بولا ہے۔ پولیٹیکل سائنس کا ڈگری ہے ان کے پاس، لیکن کاغذ نہیں دکھائیں گے۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں، ڈونٹ وری، اس دیش کے نوجوانوں نے، پڑھے لکھے نوجوان جو ہے، آپ کو آج سے پورا پولیٹیکل سائنس سکھائیں گے ہم، آپ کو ڈگری دے کے ہی بھیجیں گے ہم، پورا پیور پولیٹیکل سائنس سکھائیں گے ہم۔ کیا جھوٹے آدمی، ایک ہے ہوم منسٹر ستیہ ہریش چندر ہے، ستیہ کو ماننا پڑے گا۔ ہوم منسٹر امت شاہ جی ستیہ ہریش چندر ہے، بول رہے ہیں ہم NRC لے کے آئیں گے، سچ بول رہے ہیں، لیکن پردھان منتری جھوٹ بول رہے ہیں۔ ارے NRC کا ڈسکشن ہی نہیں ہے، لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں بھائی، سچ بولو جھوٹ بولو، جو بھی آپ بول رہے ہیں نا، اس میں نیت کم ہے۔ ہم کو امید نہیں ہے ان کا، آپ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، آپ کے ایجنڈا پتا ہے ہمیں۔ الو مت بنائیے بھائی، ڈی مانیٹائزیشن لے آ کے لائن پہ کھڑا کیا نا، ایک بار الو بن گئے ہم، ابھی کاغذ نہیں دکھائیں گے ہم، چھوپے نہیں کریں گے ہم۔ یہ دیش سب کا ہے، یہ دیش ہمارا ہے۔ آپ جو سوٹ پہنتے ہیں نا، سوٹ ہمارا ٹیکس ہے، وہ آپ کا ورلڈ ٹریول جو بنتا ہے نا، ہمارا ٹیکس ہے بھائی۔ آپ کا کیمرہ مین، آپ کا میڈیا، سبھی ہمارا پیسہ ہے۔ ٹھیک کہا بہن نے، نوکر ہے تو،
काम कर। अगर करना है तो बहुत काम है इस देश में। 1 लीटर दूध को 10 लीटर पानी में लगा के 100 बच्चों को पिला रहे हैं ना, उसको देख। 3,000 करोड़ों का स्टैचू नहीं चाहिए हमको। अगर बनाना है नेशनल रजिस्टर, बना सिटीजनशिप का नहीं, ऐसा रजिस्टर बना। चाहा रोजगार कितने लोगों को है, अनएम्प्लॉयमेंट का रजिस्टर बना, कागज दिखाएंगे। बना एक रजिस्टर, कितने बच्चों को अभी तक पढ़ाई नहीं पहुंचा है, बना वो रजिस्टर बना भाई। उल्लू मत बनाओ, देश सुनने वाला नहीं है। जो खड़े हैं आप जैसे नहीं है, पढ़े लिखे हैं। ओके, देश हमारा है। साइलेंस पे मत जाओ। ये चाहते हैं कि हम वायलेंट बने, हमको वायलेंट नहीं बना। हम हमारा हक के लिए फाइट कर रहे हैं। नॉन वायलेंस, लगे रहो ऐसे ही, आखिरी दम तक मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। ये मेरा लड़ाई नहीं, तेरा लड़ाई नहीं, हमारा लड़ाई है। ये मुल्क हमारा है। एनआरसी, सीएए सब जुमला है। हम देख रहे हैं असम में क्या हुआ। कहां से ले आएंगे हम डॉक्यूमेंट? क्यों ले आना है? आप कौन होते भाई हमें पूछने वाले? जब वोट मांगते हैं तो सिटीजन नहीं है हम। आधार कार्ड से लिंक करना है, हमारा पैसे बैंक को लेने के लिए हम लाइन में खड़े होना है, सब करना है हमको। लगे रहो, शांत से लगे रहो, विथ कमिटमेंट, नेवर एवर स्टॉप। अगर आज चुप हो गए हम तो कभी नहीं उठ पाएंगे। इतिहास से सीखना है हम। यही हुआ जर्मनी में। कुछ भी लीगल लॉ पॉइंट लेके वो, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution you cannot rewrite. It is the most revered, respected book of every Indian. We will not let you change a word of it. Okay? मारो कितनी गोली मारना है, करो कितना करना है, हम तो हटने वाले नहीं हैं। आगे चलेंगे, आजादी फिर लेंगे। थैंक यू। इनकलाब! 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 हैदराबाद की तारीखी इमारत चार मीनार के दामन में मौजूद गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी यूनानी कॉलेज के तलबा ने अपने कॉलेज कैंपस को जेएनयू, जामिया और शाहीन बाग की तरह तैयार किया है। शिफाखाना यूनानी निजामिया तिब्बी अस्पताल के तलबा तालीम को जारी रखते हुए हर दिन रात 8 बजे तक सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। चार मीनार तिब्बी कॉलेज के अहाते में जारी इस एहतजाजी मुजाहरे के दौरान तलबा ने सड़क पर इनकलाब और आज़ादी के नारे भी तहरीर किए हैं। इसी तरह दीवार पर लिखा है, लड़ेंगे भी पढ़ेंगे भी। तलबा की जानिब से एनआरसी और एनपीआर को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया गया। तलबा ने बताया कि तवील मुद्दती एहतजाज के दौरान अवाम में शऊर बेदारी के अलावा दीगर कॉलेजों के तलबा को भी इस एहतजाज में शामिल करने का मंसूबा शामिल है। इस सिलसिले में तलबा तंजीमों से बातचीत का सिलसिला जारी है। इस एहतजाज के जरिए मुल्क के आइन और जमहूरियत को बचाने की कोशिश की जा रही है। एनपीआर, एनआरसी और सीए को लेकर पूरे मुल्क में जो एहतजाज चल रहा है, वो एहतजाज अब वो तालीमी इदारों का रुख कर गया है और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इसका ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। और उसी की कड़ी यहाँ गवर्नमेंट निजामिया तिब्बिया कॉलेज में यहाँ के जो मेडिकोस गुज़िश्ता 15-20 दिन से मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। आज उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है, वह ये कि ये डॉक्टर्स भी अब इस प्रोटेस्ट का एक हिस्सा बन गए हैं। डॉक्टर्स जो सोसाइटी का क्रीम होते हैं और जिनकी बात को बहुत ज़्यादा वज़नी हैसियत माशरे में रखी जाती है, वो भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन गए हैं। अब ये देखिए कि एक लो लेवल का ऑफिसर एक सुपर स्पेशलाइज्ड सर्जन या सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से आकर वो उनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछेगा,
उनके पेरेंट्स के डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस के बारे में पूछेगा और उनकी सिटीजनशिप को डाउटफुल बनाकर चला जाएगा, जबकि ये वो तबका है जो उन्हीं लोगों की जानों को बचाता है। हो सकता है कि वो ऑफिसर जिसकी जान को वो बचाया वो और उस डॉक्टर को जो है वो क्वेश्चन मार्क और डाउट बनाकर चला जाएगा। ये इंतहाई नाइंसाफ़ी की बात है, सेकुलरिज्म और जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, और स्टूडेंट्स का जो पावर है वो नेशन का पावर है। तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो सारे तालीमी इदारों के अंदर जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जो इस वक्त स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यकीनन इंशाल्लाह ये बात रंग लाएगी, और हम हुकूमत से, मरकज़ी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो फ़ौरन इस सियाह कानून को वापस लें। तेलंगाना के चीफ जस्टिस आर.एस. चौहान ने तेलंगाना स्टेट जुडिशल एकेडमी के 24वें बैच के कोर्स का आगाज़ किया है। इस बैच में 51 जूनियर सिविल जज चीफ जस्टिस ने जूनियर सिविल जजों को अपने मुफीद मशवरों से नवाजा। उन्होंने जूनियर सिविल जजों को अदलिया के वक़ार को बुलंद करने और अदालती निज़ाम में शफ़ाफियत को बरकरार रखने की हिदायत दी और कहा कि एकेडमी का मकसद जुडिशल अफसरान बनना नहीं बल्कि अच्छे इंसान बनाना है। चीफ जस्टिस ने जूनियर सिविल जजों को हलफ दिलाया और अपनी मुबारकबाद भी पेश की। खातून सनतकारों की हौसला अफजाई और तिजारत के शोबे में लिए जाने वाले एहतियाती इक़दामात पर हैदराबाद में फिक्की फ्लो का एक इजलास मुनक़िद किया गया। फिक्की फ्लो की चेयरपर्सन सोना चटवानी की क़यादत में मुनक़िदा इजलास में वीहब CEO दीप्ति रावला के अलावा RBI वर्ल्ड तर्जुमान रमाकांत और दीगर ने शिरकत की। इस दौरान GST फाइल करने के अलावा अकाउंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कानूनी चाराजोई पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा नई खातून सनतकारों के साथ मुआहदे भी किए गए। फिक्की फ्लो की चेयरपर्सन ने मीडिया से खिताब के दौरान कहा कि अब ख़वातीन भी तिजारत के मैदान में दाखिल हो रही हैं। कई मुश्किलात के बावजूद ख़वातीन भी बड़ी तादाद में अब इस पेशे को अपनाते हुए तिजारत में कामयाब हो रही हैं। हैदराबाद के कदीम दीनी दरसगाह जामिया निज़ामिया में मुसलमानो64 को दरपेश मसाइल और उनका हल के उन्वान पर इल्मी मुज़ाकरा मुनक़्क़िद किया गया। मुफ्ती खलील अहमद ने इस मौके पर कहा कि हिंदुस्तान में 764 साल मुस्लिम हुक्मरानी के बावजूद किसी भी बिरादरान वतन को हिंदुस्तान से बेदखल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि 25 जनवरी को जामिया निज़ामिया का जलसा तक़सीम इस्नात और इनामात मुनक़्क़िद होना है और बानिए जामिया निज़ामिया का उर्स भी मनाया जाएगा। जामिया में एक इल्मी मुज़ाकरा मुनक़्क़िद किया गया जिसमें फ़ाज़िल मक़ाला निगार ने अपनी पूरी मेहनत व कोशिश व जिद्दोजहद से उम्दा मक़ालात पेश किए जिसकी आज कौम को ज़रूरत है। इंशाअल्लाह इसके मुताले से कौम को बड़ा फ़ायदा होगा। इसी तरह 25 जनवरी को रोज़ शंबा आने वाले हफ्ते के दिन इंशाअल्लाह ताला हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामिया निज़ामिया का उर्स शरीफ होगा और उसी दिन मगरिब के बाद जलसे तक़सीम असनाद व इनामात भी मुक़र्रर है। आप हज़रात से ख्वाहिश की जाती है कि इन दोनों महाफिल में कसीर तादाद में शिरकत फरमा कर सआदत हासिल फरमाएँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल सबसे ज़्यादा मौज़ूए बहस टेक्नोलॉजी है। AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल न सिर्फ कंप्यूटर साइंस में हो रहा है बल्कि इंजीनियरिंग के हर शोबे में ये दाखिल हो चुका है। हैदराबाद के मशहूर तालीमी इदारे मुफ़क्कम जाह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में AI के इस्तेमाल पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के असातिज़ा के लिए बाकायदा एक वर्कशॉप शुरू किया है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। For the 1-week faculty developer program on AI applications in powertronic systems, AEPS 20 being organized by Electrical Engineering Department, will help the faculty. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में असरअंदाज हो रही है। पहले ये समझा जाता था कि AI का अहाता सिर्फ कंप्यूटर साइंस तक ही महदूद है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब इसका इस्तेमाल इंजीनियरिंग के दूसरे शोबों और ख़ासकर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़े पैमाने पर होने लगा है। माहिरीन का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इतनी मौसर साबित होगी कि एक मशीन के खराब हो जाने की सूरत में वो बगैर किसी इंसानी मदद के AI के जरिए अपनी खराबी को खुद दुरुस्त करने की अहल हो जाएगी। तो ह्यूमन इंटरवेंशन रहते हैं ना, वो
that should be replaced by only AI techniques. AI techniques आना हमको full मदद करना. Road accidents, train accidents, air accidents everywhere in the world. वो तो मिल में कर सकते हैं, definitely कर सकते हैं. If you really study into deep and then analyze all the data पूरा analyze करने के बाद definitely वो पूरा control कर सकते हैं to the maximum extent. कब आते हैं सुनामी, कब नहीं आते सुनामी, कब फ्लड्स आते, वो भी हम पूरा प्रेडिक्ट कर सकते, वो इम्पोर्टेंट है. हम एआई के लिए रेडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्यूचर पूरा एआई के ऊपर है. एआई हमारा को ज़्यादा एफिशिएंसी देता है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देता है. तो फ्यूचर में ज़्यादा टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा एवेन्यू है. मैं सभी स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये पूरा अपॉर्चुनिटी को यूज़ करो, यूटिलाइज़ करो, ज़्यादा इससे माइलेज ले लो. एआई की अहमियत को देखते हुए एमजे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने इंजीनियरिंग के असातिज़ा के लिए 7 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया. ये वर्कशॉप 25 जनवरी तक जारी रहेगा. हम ये चाह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी जो बदलती जा रही है उससे हम जो है पीछे न रह जाएं. तो उसके लिए हम इंडस्ट्री से भी लोगों को बुला रहे हैं और मुझे यकीन है कि जो है इस एक हफ्ते में जो चीज़ें सीखने को मिलेगी वो बच्चों को और असातिज़ा के लिए बहुत मुफीद साबित होगा. इसमें 56 पार्टिसिपेंट्स हैं. इसमें एक पार्टिसिपेंट साउथ कोरिया से भी आए हैं. आंध्र यूनिवर्सिटी के पार्टिसिपेंट्स भी हैं. अदर यूनिवर्सिटीज़ और फिर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से पार्टिसिपेंट्स आए हैं. मेन एम इसका ये है कि जो एआई टेक्निक्स आजकल ज़्यादा डेवलप हो रही है उसको इलेक्ट्रिकल में किस तरह से यूज़ किया जा सकता है. तो जो हमारे पास एक्सपर्ट्स आ रहे हैं वो BHEL से भी आ रहे हैं, ABB से आ रहे हैं, IIT से बुलाया है, IIIT से हमने बुलाया है. उस तरह से उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, NIT वर्कल से एक्सपर्ट्स आ रहे हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहमियत को देखते हुए हुकूमत तेलंगाना ने साल 2020 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करार दे दिया है और रियासत में इस टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए IIT खड़गपुर के ताउन से हैदराबाद में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का क़याम अमल में लाने का ऐलान कर दिया है. एमजे कॉलेज ऑफ हैदराबाद में इंजीनियरिंग के असातिज़ा के लिए मुनक़िदा वर्कशॉप में असातिज़ा को मशवरा दिया गया कि वो अपने तलबा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मुस्तक़बिल के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार करें. न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट. और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें. सबसे पहले सुर्खियां. दारुल हुकूमत पर फैसला लेने के लिए मुनक़िदा सह-रोज़ा असेंबली इजलास का आज से हुआ आगाज़. काबीनी इजलास में 3 दारुल हुकूमत की तायद में पेश करदा हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को दी गई मंजूरी. सख्त सिक्योरिटी के बावजूद एहतजाजी किसान असेंबली और सेक्रेटेरिएट पहुंचे. पुलिस के लाठीचार्ज में दर्जनों एहतजाजी मर्द और खवातीन किसान जख्मी. वहीं अमरावती के नाराज किसानों को मनाने की भी कोशिश. असेंबली में CRDA तरमीमी बिल पेश. औलदार किसानों के लिए अराजी और वजीफे का ऐलान. कर्नूल में हाईकोर्ट के क़याम के ऐलान का खैर मकदम ही. बार एसोसिएशन के अरकान ने एक दूसरे को दी मुबारकबाद. वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से किया इजहार तशक्कुर. शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ कर्नूल में एहतजाज. हज़ारों ख़वातीन ने रैली में की शिरकत. शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने का मरकज़ से किया गया मुतालबा. बुलेटिन की शुरुआत करेंगे असेंबली इजलास से. दारुल हुकूमत के क़याम को लेकर मुनक़िदा असेंबली के सह-रोज़ा इजलास का हंगामी आगाज़ हुआ. इससे पहले वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में काबीनी इजलास का इनेकाद किया गया. हाई पावर कमेटी ने 3 दारुल हुकूमत के क़याम पर मुश्तमिल रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की. काबीना ने हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है. इस पर असेंबली में मुबाहिसा होना है. अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी के MLAs ने हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया. तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू ने काबीनी इजलास में 3 दारुल हुकूमत की रिपोर्ट की मंजूरी पर तशवीश का इजहार किया. वाज़ेह है कि कई तंजीमों और सियासी जमातों ने चलो असेंबली की कॉल दी है. एहतियाती इक़दामात के तौर पर गुंटूर और अमरावती को जाने वाली RTC बसों को फिलवक्त रोक दिया गया है. इसके अलावा असेंबली और उसके करीबी इलाकों में आम आदमी के दाखिले की इजाज़त नहीं है.
वहीं आंध्र प्रदेश के वजीर बल्दी नज्म व नस्क बोत्सा सत्यनारायणा ने दारुल-हुकूमत अमरावती की तामीर के लिए अपनी अराजियात देने वाले किसानों के लिए बेशतर तरगीबात का ऐलान कर दिया है। उन्होंने रियासती असम्बली में आला इख्तियारी कमेटी की सिफारिशात पेश करते हुए कहा कि हुकूमत किसानों के साथ अपने मुआहदे को जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि कौलदार किसानों को क़ब्ल-अज़ीं 10 साल के बरखिलाफ 15 साल तक कौल पर आराजी की रकम दी जाएगी। वजीफे की रकम को 5,000 रुपये कर दिया जाएगा। किसानों को 1,000 मुरब्बा गज रिहायशी प्लॉट्स दिए जाएंगे, 200 मुरब्बा गज तिजारती प्लॉट्स दिए जाएंगे। रियासती हुकूमत ने असम्बली में आज सुबह कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी बिल पेश किया ताकि रियासत की तरक्की को गैर मरकूज किया जा सके। और इस सब के बीच अमरावती को दारुल हुकूमत बरकरार रखने का मुतालबा करने वाले किसानों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। एहतजाजी किसानों ने पुलिस की जानिब से की गई रुकावटों को नज़रअंदाज करते हुए असेंबली के दूसरे गेट तक जा पहुंचे। पुलिस ने एहतजाज के पेश नज़र खारदार तार लगाए थे। इसके बावजूद एहतजाजी किसान असेंबली के पिछले हिस्से से असेंबली के करीब पहुंचे। एहतजाज के सबब असेंबली और उसके करीबी इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। सिक्योरिटी को चकमा देकर एहतजाजी असेंबली के करीब जा पहुंचे। वहीं अमरावती में किसानों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। जंगलों के रास्तों से एहतजाजी किसान चलो असेंबली की कॉर पर असेंबली के करीब पहुंचे। इस दौरान एहतजाजियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस की जानिब से की गई लाठीचार्ज में कई अफराद जख्मी हुए। एहतजाज में बड़ी तादाद में खवातीन भी शामिल रहीं। पुलिस की जानिब से की गई लाठीचार्ज में कई खवातीन किसान जख्मी हुए। चंद मुकामात पर पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान कशीदगी भी देखी गई। वहीं गुंटूर के रुकने पार्लियामेंट गल्ला जयदेव ने 2000 से ज्यादा किसानों के साथ सेक्रेटेरिएट का घेराव करने की कोशिश की। अमरावती परिरक्षणा समिति, जेएसी और दीगर सियासी जमातों की जानिब से शुरू करदा चलो असेंबली प्रोग्राम के पेश नज़र रुकने पार्लियामेंट गल्ला जयदेव पिछले रास्ते से सेक्रेटेरिएट पहुंचे। पुलिस की जानिब से खड़ी की गई रुकावटों को नज़रअंदाज करते हुए रुकने पार्लियामेंट और उनके हामी सेक्रेटेरिएट पहुंचे। अपोजिशन और किसान तंजीमों के चलो एहतजाज के पेश नज़र पुलिस के कड़े बंदोबस्त थे। इसके बावजूद एहतजाजी किसान सेक्रेटेरिएट तक जा पहुंचे। इस दौरान पुलिस और एहतजाजी किसानों के दरमियान धक्कम पेल देखी गई। पुलिस ने MP गल्ला जयदेव को हिरासत में लेकर करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। और इस सब के बीच करनूल में हाई कोर्ट कायम करने के ऐलान के साथ ही करनूल बार एसोसिएशन में खुशी की लहर देखी गई। करनूल बार एसोसिएशन के वकला ने एक दूसरे को इस मौके पर मुबारकबाद दी। लोगों में मिठाइयाँ तकसीम की गई। करनूल बार एसोसिएशन के सीनियर एडवोकेट जयराज ने करनूल में हाई कोर्ट कायम करने के ऐलान का खैर मकदम किया। साथ ही वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी, रुकने असेंबली हफीज़ खान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इलाके रायलसीमा के अवाम जगनमोहन का एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरों ने नेल्लूर में CAA, NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज किया है। उन्होंने RTC बसों को रोका। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से अवाम दुश्मन कवानीन, मजदूर और किसान मुखालिफ पॉलिसीज़ पर रोक लगाने की मांग की। CAA, NPR और NRC के खिलाफ RTC डिपो तक ज़बरदस्त रैली निकाली गई। इस रैली में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने शरीक होकर मजहबी इत्तेहाद का मुजाहरा किया। वहीं करनूल ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से शहरियत तरमीमी कानून को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए जंजीरी भूख हड़ताल 5वें रोज़ भी जारी रही। रुकने कानून काउंसिल KS लक्ष्मण राव की भूख हड़ताली एहतजाजियों से मुलाकात हुई। इजहार यगानियत उन्होंने किया। साथ ही कहा कि आइन में आर्टिकल 14 और 15 कहता है कि मुल्क का हर फर्द बराबर है, लेकिन BJP हुकूमत मजहब की बुनियाद पर लोगों में तफरीक करती है। वहीं ज़िला करनूल के बंगानापल्ली में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ खवातीन की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली अहम सड़कों से होते हुए RDO दफ्तर तक जा पहुंची। एहतजाजियों ने मुतराज़ा कानून के खिलाफ नारे लगाए। हुकूमत से शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने का मुतालबा किया गया। करनूल में ही नेशनल वीमेंस फ्रंट की जानिब से शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने का मुतालबा करते हुए रैली का इनेकाद किया गया। ये रैली उस्मानिया कॉलेज मैदान से होते हुए ज़िला कलेक्ट्रेट तक निकाली गई। हज़ारों ख़वातीन ने इस रैली में शिरकत की। नेशनल वीमेंस की सदर ने शहरी तरमीमी कानून को मनसूख करने का मुतालबा किया, वरना एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबाह दिया।
हटने वाले। हम खुद हड़ताल भी करेंगे लेकिन आपकी हुकूमत को उतर के रहेंगे। आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, आपके जुल्म से यहाँ कोई नहीं डरता। डरता इसलिए आप मुसलमानों से डरते हो, इसलिए इतना कमजोर हो। खबरों में इतना ही। आदाब।